Hello students, welcome back to our YouTube channel Pashur. So in this lecture we are going to discuss about the phases of Indian National Congress. So आज का जो lecture होगा वो होगा phases of Indian National Congress. So you are aware of that कि हमने पिछले वाले lecture में इसकी formation and its background हमने अच्छी तरीके से discuss कर लिया. So now in this lecture we are going to study the national movement launched by Indian National Congress after its formation. सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा सो मेक श्योर यू चेक दैट इन सो दैट यू नॉट गेट एनी कन्फ्यूज इन दिस वीडियो. सो आज हम देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च की जिनको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं. पहला है मॉडरेट फेज़ एंड देन सेकंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज़ एंड थर्ड द एरा ऑफ मास पॉलिटिक्स जिसको हम किस नाम से बोलते हैं गांधीयन एरा. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी the phases of INC. So without taking any further time, so let's get directly into our topic, that's in phase of Indian National Congress. So if we see the first phase of Indian National Congress was moderate phase that started from 1885 and remained till 1905. So in this phase अगर हम देखते हैं कि जो कि नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने इस दौरान इनकी पॉलिसी को डोमिनेट किया, कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, वो बेसिकली दे वर स्टॉन्च बिलीवर्स इन लिबरलिज्म. उनके नेशनल लीडर्स अगर हम देखें कौन कौन थे, जी एस आयर, दादा भाई नेहरू, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता. ये स्टॉन्च बिलीवर्स है किसके, लिबरलिज्म के. एंड दे वर मॉडरेटेड they were moderate to politics. So that's why this phase came to be known as moderate phase and these leaders came to be known as moderates. तो हम अब इसके देखेंगे कि इन्होंने क्या एम्स, अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स रखे एंड इनके डिमांड्स जो थे उन्होंने अपने डिमांड्स क्या रखे ब्रिटिश रूल्स के. तो पहला हम देखते हैं इनका जो एम था वो था एजुकेशन ऑफ द मासेस, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो इनका जो पहला ओपिनियन रहा था वो कि हम पॉलिटिकली एजुकेट करें पीपल को, उनको अपने राइट्स के बारे में बताएं. उन्होंने अपनी मीटिंग्स की, दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू अवेयर देयर the public about their rights, and they want to politically educate the people like what is colonialism, what is imperialism, the British are ruling us through colonies, they are draining our economy, etc, etc. So they were, to some extent they were successful in it. And they also demanded that, now there has been demands, they also demanded Indian representation executive council and Indian council in London. So Indian representation ये कहाँ पे डिमांड कर रहे थे, in the executive council and Indian council in London. Indian council in London में जो भी पॉलिसी बनती थी वो इंडिया के लिए बनती थी, बट देयर वाज नो इंडियन प्रेजेंटेशन इन देयर. सो दे डिमांडेड in this. And they also wanted reform of legislative council, separation of executive from judiciary, and they also wanted that there should be decreased land revenue tax and ending of peasant oppression. You are aware of their taxation system, that the peasants were heavily taxed during the British rule. They had to pay taxes on everything. You will see the salt, sugar, they had to pay taxes on everything. उनको हर किसी चीज़ पे टैक्स लगाया जाता और they were heavily taxed. ऐसा नहीं कि छोटे टैक्स थे, they were in full amount. उनके बहुत they were heavily taxed. So they wanted that the tax should be abolished, including salt tax and sugar. So they also wanted freedom of speech and expression, जो कि ब्रिटिश रूल में यहाँ पे नहीं था. So they were restricted of freedom and speech of expression. So we see the next that इन demands को fulfill करने के लिए इन्होंने अब कौन सा मेथड इख्तियार किया. नाउ what the method they followed, we will see it. So let's move on. तो उन्होंने क्या किया कि they believed in peaceful and constitutional method of to demand and fulfill those demands. इन्होंने पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी ये डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी. बट दे आल्सो बिलीव्ड दैट ये परसुएशन पे बिलीव करते थे. दे वर पीसफुल, सो दे बिलीव्ड इन परसुएशन रादर दैन कन्फ्रंट्रेशन. इसके बाद का जो हम फेज़ देखते हैं जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के नाम से बोलते हैं, उनमें क्या था कि नाउ दे स्टार्टेड टू बिलीव ऑन कन्फ्रंट्रेशन इंस्टेड ऑफ परसुएशन. They also used meetings, pamphlet resolutions, memoranda, and delegations to voice their demands. So they used meetings, resolution, pamphlets, memoranda, delegation. They sent delegation to London. Then he came. Then they arranged their meetings there to talk on the Indian matter.
सो इनका जो मेथड है इसको हम कहते हैं 3P। देयर मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज 3P: प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। बट इनका जो यहाँ पे वीक पॉइंट था ना वो ये था, दे एम्ड एट गेटिंग पोलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश डोमिनेंस। इनका अभी स्वराज का कंसेप्ट नहीं आया था। दे एम्ड एट गेटिंग द पोलिटिकल राइट्स, दे वांटेड देयर ओन assembly, on Indian council, but they didn't want that we should have separate. They wanted but under the British dominance. So इनकी जो सक्सेस थी, पहली सक्सेस क्या थी इनकी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की पहली अचीवमेंट थी। इससे क्या हुआ कि जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, जो ये डिमांड कर रहे थे कि इसका साइज़ बढ़ाया जाए, दे दिस एक्ट इंक्रीज्ड इट। एंड ऑल्सो जो कि इनमें नॉन ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, इंडियंस प्रेजेंट थे, वो भी इस एक्ट से थोड़े नंबर्स इंक्रीज हो गए। बट लाइक इट वाज समहाउ नेग्लिजिबली, इसने भी मतलब सेटिस्फाई करना, इट फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन इज दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो इसके दे आल्सो सक्सीडेड इन टू सम एक्सटेंट टू शो सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल। इन्होंने कुछ आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया, एजुकेशन दी पीपल को, कौन आइडियाज़ जैसे डेमोक्रेसी हो गई, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। और ये कुछ हद तक they were to some extent able to expose many economic draining policies of British. So they were successful in it. But the limitation, if we see the limitation here, this phase of Indian national movement excluded the masses. So they basically excluded the middle and lower class people, and only educated elites participated in it. So they excluded the majority of the people of that time, and they also did not demand the complete independence from foreign rule. Even this concept of Swaraj was absent, as I told earlier. So if we move to the next part, और इनका क्या था कि दे स्टिल हैव बिलीव इन ब्रिटिश रूल। इनको था कि हम ब्रिटिश रूल हमारी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, दे विल वो हमारी बातें मानेगा, वी विल प्रोटेस्ट पीसफुली एंड the British rule will agree on us, the British government would agree on it, but it failed to satisfy the moderates and the masses. So that's why we see in next beginning of 20th century a new class emerged. तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो इन 1906 एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो चला इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब से चला, 1906 से लेके 1919 तक. सो वही सी के इनके मॉडरेट्स के लिमिटेशन जो थे. अब क्या हुआ कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी a new class of Indian leaders emerged which were different from moderators. तो ये typically different थे. They were younger, they believed in confrontation, they took aggressive stance, उन्होंने peaceful and constitutional method को अब छोड़ दिया. They straight went on boycotts. So we see that एक नया और टिपिकल क्लास आ गया जिनको हम क्या के इस नाम से फिर बोले, नाम दिया एक्सट्रीमिस्ट. सो दे टुक मोर एग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. दे वर typically younger and did not believe in soft and persuasive approach of moderate group. तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया. सो इनमें सबसे जो फेमस थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल. फेमसली दे नोन एज लाल बाल पाल. तो इस पीरियड के दौरान, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के दौरान ये लीड कर रहे थे. लाल लाजपत राय कहाँ कर रहे थे, पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे में, एंड बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल. सो देयर आर आल्सो लीडर्स, यू सी दैट अरबिंदो घोष, आर राजनारायण बोस, A.K. दत्ता एंड अदर्स, दे वर आल्सो ऑन फ्रंट, दे वर आल्सो लीडिंग. सो हम देखते हैं कि ये क्लास क्यों इमर्ज हुआ, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स. ये तो पहला काज था कि मॉडरेट्स ने कोई अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं ला पाए ब्रिटिश अथॉरिटी से. उनके सॉफ्ट एंड परसुएसिव अप्रोच फेल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच फेल हो गया. तो जो उन्होंने लाया था 1892 द इंडियन काउंसिल एक्ट, वो भी काफ़ी हद तक फेल ही हो गया कि सेटिस्फाई इंडियंस. और हम देखते हैं कि जो 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का, किसने करवाया था, Lord Curzon. Maybe this might ask in your exam.
द पार्टीशन ऑफ बंगाल ओपनड इन द आइज ऑफ इंडियंस ट्रू कलर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इनको समझ आ गया कि ब्रिटिश रूल क्या है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि ही डिवाइड बंगाल इनटू टू टू स्टेट्स, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में क्या था कि ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उन्होंने वहाँ पे कम्युनिज़म फैलाने की कोशिश की थी, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उन्होंने फर्मली अपोज किया था इस पार्टीशन को, बट दे फेल्ड। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे मर्चेंट ज़मीन सभी इसके अपोजिट गए थे, इवन वुमेन भी, पहली बार वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेशन ली, बट दे फेल्ड टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जो कि किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो और भी ड्यूरिंग दिस मॉडरेट फेज कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अडॉप्ट किए एंड दे पास्ड वेरियस एक्ट्स। कौन कौन? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जिसके तहत ब्रिटिश So we also see that during the moderate phase, the British government adapted some administrative measures during Curzon's rule. उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए जैसे ऑफिशियल सिगरेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड द कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट। एंड ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट था, इसके तहत क्या था कि ब्रिटिश को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का और फर्म होल्ड मिला। They were firmly able to hold the British, the Indian universities more now. And above all the partition of Bengal, जो partition of जो किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। इन एक्ट्स की वजह से इंडियन माइंड्स में कोई भी अब शक नहीं रहा कि ब्रिटिश रूल क्या करना चाहता है इंडिया में। दे नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल अब इनके सामने आ गया था। सो फाइनली हम कब देखते हैं 1906 में कौन कांग्रेस मिलती है, कहाँ पे मिलती है, कलकत्ता में, एंड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी। तो इसमें क्या हुआ कि ये मत पूछा है कि गोल ऑफ स्वराज कब दिया गया। इन 1906 कलकत्ता सेशन, इसमें अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्स गोल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, और जिसको हम कहते हैं स्वराज। सो इसी में बाल गंगाधर तिलक फेमसली सेड दैट स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसमें नेशनलिस्ट इन कर गए, कांग्रेस में, आईएनसी में नेशनलिस्ट अब आ गए थे, और अब से स्टार्ट हुआ एक्सट्रीमिस्ट फेज। बट after a year it permanently split into two wings, extremist phase and moderate phase। अभी तक ये दोनों साथ ही साथ में काम कर रहे थे। बट ये सूरत जिसको हम कहते हैं सूरत स्प्लिट 1907, इसमें क्या हुआ कि 1907 की जो मीटिंग थी वो कहाँ पे होनी चाहिए थी, नागपुर में, बट वो शिफ्ट की गई सूरत। क्यों? कि सूरत किसका होम प्लेस था, बाल गंगाधर तिलक का। सो द एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो कांग्रेस पार्टी में एक्सट्रीमिस्ट एग्जिस्ट करते, वो चाहते थे कि इस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंटशिप दी जाए। बट क्या था कि जो ये थे मॉडरेट्स, वो नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर जीत जाए। तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया, राजबिहार घोष को। किसने मुंह मीटिंग की, गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ से? सूरत से, ये नागपुर से सूरत में क्योंकि सूरत होम प्लेस था बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस के रूल के हिसाब से, जो कि अगर किसी लीडर का होम प्लेस था तो वो वहाँ पर प्रेसिडेंटशिप नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल उसी को सपोर्ट करे। सो दे डेलिबरेटली शिफ्टेड द मीटिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि 1907 ये दोनों ग्रुप आपस में स्प्लिट हो गए, और इसी के साथ साथ ब्रिटिश ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट भी की। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने स्टार्ट की। दे वर ऑन द साइड ऑफ मॉडरेट्स एंड दे अपोज्ड द दे अपोज्ड द एक्सट्रीमिस्ट फेज। अब एक्सट्रीमिस्ट फेज जो आ गया, अब क्या हुआ था कि अब इन्होंने मेथड ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट कर लिया डिफरेंट। सो इनका हम मेथड ऑफ स्ट्रगल पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल को इंक्लूड कर लिया, किस में, नेशनल मूवमेंट में। किस को? लोअर एंड मिडिल क्लास को भी,
एंड दे आल्सो इन्वॉल्वड स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइकआउट्स की, इन्होंने स्ट्राइक्स की, इन्होंने ओपनली जो ब्रिटिश ये फॉरेन मेड गुड्स थे उनको जला दिया। इनका जो बिलीफ था वो था कि कन्फ्रंट्रेशन रादर देन परसुएशन, सो दे बिलीव्ड इन कन्फ्रंट्रेशन रादर देन परसुएशन। दे बिलीव्ड इन सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर लाइफ फॉर देयर मदर लैंड। सो इनका ये बिलीव था कि ये कन्फ्रंट करेंगे। दे वर वायलेंट इन देयर डिमांड, दे वर वेरी वोकल in there to demand their demands. So they also opposed the westernization of India by British. They took control over the universities or during these period. They resort to boycott, स्टूडेंट्स ने भी बाइकआउट किया, वो भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए और इन्होंने फिर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था वापस। एंड इनका एक और जो पॉजिटिव पॉइंट था, ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि इनको ब्रिटिश क्राउन को, सो दे डिड नॉट बिलीव ऑन द ब्रिटिश क्राउन। सो इनकी जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल थी वो क्या थी, पहले इन्होंने बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स को, पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने अरेंज की बहुत ज़्यादा, और उन्होंने एक आर्मी बनाई खुद की, कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर जिनको हम किस नाम से जानते हैं, समितीज़ के नाम से। और इन्होंने क्या किया कि मेलाज में जाके, पॉपुलर फेस्टिवल्स में जाके अपने वो एक्ट्स किए जिससे वो ये दिखाते थे लोगों को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है। सो दे फायर इन्होंने एक्ट किए कहाँ पे, पॉप ट्रेडिशनल मेलाज में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है। एंड दे बेसिकली एम्फेसाइज्ड पीपल टू बी सेल्फ रियलेंट, अपने ही इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। दे टोल्ड पीपल, आप अपने ही साथ आप क्या करें कि आप इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स यूज़ करें, फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स ना बाई करें। सो दे वर वेरी वोकल इन देयर अपोजिशन। ठीक है, इन्होंने ओपनली ब्रिटिश चैलेंज को अब धमकाना स्टार्ट किया। एंड हियर प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी ऑन इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब गवर्नमेंट की इनके रिएक्शन क्या थी, इन्होंने वेरियस सप्रेसिव एक्ट्स इन दौरान पास किए। गवर्नमेंट अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट वाज वेरी विगोरसली, दे अटैक्ड देम वेरी विगोरसली एंड लॉज, कुछ ऐसे लॉज पास किए जिनसे इनको बहुत ही ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ और इन्फ्लुएंस पे रोक लगाई जाए। उनमें से हम देखते हैं सेडिशन मीटिंग्स एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में किया, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 एंड आल्सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। तो इस एक्ट से और भी नंबर ऑफ द साइज़ ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो बढ़ा दिया गया। एंड आल्सो इन 1909 तिलक जो एक मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उसको प्रिजन में इन्होंने, दे कैप्चर्ड हिम एंड पुट हिम इन द प्रिजन एंड रिलीज इन 1914, जून 1914 में इसको बाद में रिलीज़ कर दिया गया, बट ही वॉज कैप्चर्ड एंड पुट इन प्रिजन। एक और जो ख़ास इवेंट था इस दौरान 1911 में, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ से, कलकत्ता में, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। किसने किया, लॉर्ड हार्डिंजे ने, लॉर्ड हार्डिंजे। सो 1911 में आल्सो दे शिफ्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। सो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनका जो इम्पैक्ट रहा वो कहाँ तक था। सो बाल गंगाधर तिलक एंड उन्होंने गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल जो हमने पहले ही कहा था वो इन्होंने इनमें एक्ट्स किए जिन्होंने इनको ये दिखाया कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया कैसे हो रही है एंड द मेजर सोशल रिफॉर्म एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। इस दौरान हम देखते हैं कि देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ नेशनल प्राइड एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म and as extremists involved lower and middle class
टू, तो इस दौरान मासेस को बहुत ही ज़्यादा एजुकेट किया गया एंड दे आल्सो इंक्लूड मासेस इन देयर मूवमेंट, जो कि मॉडरेट्स ने एक्सक्लूड कर दिया था। और जो स्लोगन दिया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज द टॉक ऑफ सोसाइटी। हर कोई यही बोलता था स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव। व्हेनेवर दे यूज्ड टू सी द ब्रिटिश, दे एट दैट टाइम वो खुद ही उनको पुकारते थे स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन वाज बाइकॉटेड। इन्होंने अपनी एजुकेशन देना स्टार्ट की, जिसकी वजह से एक रिवाइवल आ गया एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि पढ़ना तो था इनको। दैट्स वाई दे बाइकॉटेड ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ देयर एंड दे आल्सो बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिली किनको, ब्रिटिश इंडियंस को। एंड देयर वाज आल्सो मेजर रिफॉर्म इन एजुकेशन, एस्टैब्लिशिंग नेशनल यूनिवर्सिटी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ये मैंने अभी कह दिया। इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं आती थी। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नेशनलिस्ट्स। सो द नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग तिलक, जिसको कब रिलीज़ कर दिया गया, जून 1914। उन्होंने कहा कि हम अब सपोर्ट करेंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इन वार एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसको सपोर्ट करेंगे। बट क्या हुआ कि इनका एक मिस्टेकन बिलीफ था अंदर ही कि अगर हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को तो ये हमें अपनी लॉयल्टी के बदले सेल्फ गवर्नेंस का रोड हमें वो देंगी। बट ये क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही इनका फॉल्स बिलीफ था, क्योंकि इनको जब पता चला कि द डिफरेंट पावर्स, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिकॉज द डिफरेंट पावर्स was they were protecting the existing colonies, they want to protect safeguard them, so that's why the world war first happening and they when began। जब उनको पता ही चला तो they were obviously disbelief उनको हुआ था फिर इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। सो इसके बाद इन 1915-16 एक होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि कांग्रेस इस दौरान क्या था कि अब तो दो हिस्से हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एक था मॉडरेट फेज एंड एक था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, दो विंग्स बन गए थे एंड दे वर नॉट इन कोऑर्डिनेशन, सो इट वाज इजी टू सप्रेस देम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो कांग्रेस ने अब इन्होंने क्या किया कि दो होम रूल मूवमेंट्स चली। कौन कौन सी, एक का लीडर था बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम कहते हैं लोकमान्य तिलक, एंड दूसरा क्या था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट। ये बहुत ही तेज़ी से हमारी कंट्री में फैल गया था, विद इन द फ्यू इट स्प्रेडेड very quickly, it made rapid progress, and the cry of home rule, it agitated to length and breadth of India. So इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि द अलायंस इन दोनों होम रूल मूवमेंट्स ने, एक तो एनी बेसेंट के साथ लीडरशिप में थी, दूसरा लोकमान्य तिलक, तो इन्होंने एक अलायंस बनाई जिसको ऑल इंडिया होम रूल लीग हम कहते हैं, जो कि इंस्पायर हुई थी कहाँ से, इरिश होम रूल लीग से। इनका जो अभी भी ये था कि एक एम कह ले हम, इनका एम क्या था कि टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल इन इंडिया आफ्टर वार। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक क्राई लगा, इसमें भी लोकमान्य तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया कि होम रूल इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था जून 1917 में, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द पॉपुलर द प्रोटेस्ट जो उनके साथ किए गए थे पीपल, बहुत सारे लोगों ने, एंड द फोर्सड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रिलीज, दे वर फोर्स्ड टू रिलीज अराउंड सितंबर 1917। सो इसके साथ हम देखते हैं कि लखनऊ सेशन जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट, इसमें क्या हुआ, लखनऊ सेशन में 1916 जब लखनऊ सेशन हो, उसमें दो चीज़ें हुई। पहली, जो कि अब दो विंग्स बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ये यूनाइट हो गए। कब से, 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था,
तब से अभी यूनाइट हो गए। तो इन्होंने दोनों विंग्स ने अपने अपने लीडर्स ने ये देखा कि इनकी वजह से जो उन्होंने दो विंग्स बना लिए थे कांग्रेस में, इसकी वजह से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हुई, इनएक्टिविटी हो गई थी देश में। तो सो दे केम टुगेदर वंस अगेन। एंड आफ्टर दिस हम क्या देखते हैं कि सेकंड जो मेन इसमें हुआ था कि ऑन इसमें क्या था कि कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी डिफरेंसेस को छोड़ के एक कॉमन ग्राउंड चुना एंड दे पुट कॉमन डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी डिफरेंसेस छोड़ के दे दिस आल्सो नोन द यूनियन इज आल्सो नोन एज कांग्रेस लीग पैक्ट। इसमें क्या था कि जो जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एंड द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, अब इन्होंने ये बिलीव किया कि इंडिया कोड ओनली वन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो ये अब यूनिटी में आ गए थे। सो दिस इज़ आई थिंक डन फॉर टुडे lecture, and we will see the era of mass politics and the Gandhian era in the next one. So thank you.